Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, Basic Problems of an Economy. First, we will learn what is economic problem. Economic problem क्या है बेटा? It is a problem regarding the allocation of limited resources for the production of alternative goods and services. It means हम अपने resources को किस तरीके से allocate करें for the production of goods and services. In other words, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. इसको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों बोला गया बेटा? बिकॉज द रिसोर्सेज आर स्केयर्स इन नेचर एंड दे हैव द ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड हैं और जिस चीज़ों से रिसोर्सेज से प्रोडक्शन हो रहा है वो स्केयर्स नेचर के हैं. देयरफॉर वी हैव टू मेक अ चॉइस. ठीक है. There arises the problem of the choice regarding the use of these resources. It means if resources are not scarce, there is no economic problem because there is not a problem related to choice. Basic problems of an economy are what to produce, how to produce, for whom to produce, and efficient use of resources. First, we will learn about what to produce. What to produce means which type of goods is to be produced and in what quantity. It's okay. The problem what to produce can be divided into two related questions. First, which goods is to be produced and which not. And second one is in what quantity those goods are to be produced. ठीक. If productive resources are unlimited, we could produce as many number of goods as we liked. अगर ये resources unlimited होते तो हम जितने मर्जी goods को क्या कर पाते, produce कर पाते. And therefore the question what goods to be produced and what not would not have arisen. ये question arise ही नहीं होता. But because resources are in fact scarce रिलेटिव टू ह्यूमन वांट्स. हम लोग जानते हैं जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर्स हैं और ह्यूमन वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं. देयरफॉर एन इकोनॉमी मस्ट चूज अमंग द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इट शुड प्रोड्यूस. इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है कौन से गुड्स और सर्विसेज हम लोग प्रोड्यूस करें. सेकेंड पॉइंट आता है बेटा, हाउ टू प्रोड्यूस. दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ मेथड और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. मतलब आप किस तरीके से गुड्स को बना रहे हो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. फर्स्ट लेबर इंटेंसिव एंड सेकेंड इज कैपिटल इंटेंसिव. दो मेथड्स हैं. तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मीनिंग क्या है बेटा? इट मीन्स मोर यूज ऑफ द लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल. यहाँ पे आप लेबर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और कैपिटल कम. Whereas in a capital intensive technique we use more of capital and less of labor. Capital ज़्यादा use हो रहा है और labor कम. The choice between the different methods would depend on the factor supply situations and the prices of the factors of production. आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे ये डिपेंड करेगा उनकी सप्लाई के ऊपर और उन प्रोडक्ट्स की प्राइजेस के ऊपर. I hope these 2 points are clear. Now the third one, for whom to produce. Whom to produce बेटा ये problem दो aspects में divided है. First one functional distribution and the second is personal distribution. Functional distribution में they are talking about related to distribution of income. किस तरीके से हम जो factors of production हैं उनको रिवॉर्ड्स पे करें. कितना हम रेंट में पे करें, कितना वेजेस के लिए, कितना इंटरेस्ट और कितना प्रॉफिट्स के लिए. क्योंकि इससे गुड्स बनते हैं तो हमको उनको पे करना है. तो हाउ मच अमाउंट यू विल पे फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम टू नो हाउ मच वी हैव टू पे. Second is personal distribution means when we are making the goods, we have to decide
whether to produce the goods for the rich class of the people or for the poor class of the people. हमको डिसाइड करना पड़ता है हम किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस करें, मोर फॉर द रिच एंड लेस फॉर द पुअर, और लेस फॉर द रिच एंड मोर फॉर द पुअर. ठीक है. नेक्स्ट इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. Efficient use of resources means that the resources must be fully utilized. If these resources are allocated, means number of production will not be increased. अगर हम resources को allocate कर रहे हैं तो वो इस तरीके से यूटिलाइज हो कि मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस्ड हो. अगर रिसोर्सेज इनएफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हैं और आप रीएलोकेट कर रहे हो तो मोर प्रोडक्शन प्रोड्यूस होगा. क्यों? क्योंकि आपने पहले अच्छे से गुड्स को यूटिलाइज नहीं किया था. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रिप्रेजेंट्स द आइडियल सिचुएशन विच एवरी इकोनॉमी वुड लाइक टू अटेन. और हर इकोनॉमी में हर एक पर्सन हमेशा यही चाहेगा कि जो उसके रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. आई होप these points are clear to you all. Thank you.